Here we are interested in simple harmonic motion, means single frequency function, that is called as simple harmonic function or harmonic function. Okay, if you draw the curve of y with time, so it will look like this. It is repeated after a fixed interval of time. This is called as period. This is called as period of function. This is called as period of function. So we call it periodic function. We call it periodic function. This is also periodic function, but it has multiple frequency. It has multiple frequency. So we call it non-harmonic. We call it non-harmonic. So we call it harmonic. We call it non-harmonic. This is also periodic. This is also periodic. So both are periodic, but first one will represent SHM, simple harmonic motion, but second one will not represent simple harmonic motion because it has multiple frequency. It has multiple frequency. Its curve, if we draw, it may look like this. So we are focusing on simple harmonic motion. So we need such type of functions like y1 equal to a sin omega t, like that. This type of function can represent simple harmonic motion. Now the question arises, what is simple harmonic motion? What is meaning of simple harmonic motion? Okay, so let's discuss the difference between harmonic function, you can say periodic function, oscillatory function, and simple harmonic function. Oscillatory motion, periodic motion, and simple harmonic motion. Okay, so what is periodic motion? Periodic motion. What is periodic motion? If motion repeats itself after fixed interval of time, then it is called periodic motion. Okay, such as a body is moving in a circle with constant angular speed. अगर इसकी angular speed constant है, omega is a constant, then इसका जो motion है उसे हम लोग periodic motion कहेंगे, क्योंकि after a fixed interval of time, that interval is 2 pi by omega. After that interval, it repeats itself. ये अपने मोशन को रिपीट करता है बार बार इस इंटरवल के बाद, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं. हम लोग इसको क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं. व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन? If body moves to and fro or back and forth, if body moves to and fro
or back and forth about a fixed point, that is also called as mean position. Then it's called oscillatory motion. So now try to understand the difference between periodic and oscillatory. Periodic means which repeats itself after a fixed interval of time. Oscillatory means again it will repeat the motion but about a fixed point. जैसे देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, इसके इधर और इधर, इधर इधर, इस तरह से दोनों तरफ ये मीन पोजीशन है, इसके इधर इधर इस तरह से दोनों तरफ ऑसिलेट करेगा, ये दोनों तरफ मोशन करेगा, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, इस तरह से मोशन करेगा. तो फिर हम इसे क्या कहेंगे? ऑसिलेटरी मोशन. क्या कहेंगे इसे? ऑसिलेटरी मोशन. सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज एसएचएम? सो देखो, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? When a body oscillates in such a way that acceleration A is directly proportional to minus of displacement. Suppose that particle is oscillating between these 2 points. This is O point and particle is at this position. So this is X. So this is particle. So acceleration is directly proportional to minus of displacement. So this motion is called SHM. This motion is called SHM. Then we call it SHM. So here we can understand that acceleration is basically minus omega square x. Acceleration is basically minus omega square x. Omega square is just some constant. And we can say that omega equal to under root of acceleration over displacement. Acceleration over displacement. Okay, acceleration over displacement. All right, and further you will come to know that time period is 2 pi by omega. That can be written as 2 pi under root displacement over acceleration. Displacement over acceleration. So इस तरह से हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं एसएचएम का. एसएचएम का जो टाइम पीरियड होता है उसका ये फार्मूला बन जाता है 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट ओवर एक्सेलेरेशन. और यहाँ से एक्सेलेरेशन इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स. ओमेगा स्क्वायर को हम लोग वैसे तो कांस्टेंट मानते हैं बट ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर होता है. एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर होता है और इसकी मदद से हम लोग एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं, एक्सेलेरेशन टाइम पीरियड निकाल सकते हैं. तो इस तरह से हमने एसएचएम को इंट्रोड्यूस कर लिया है. अब हम लोग समझेंगे किस तरह से हम लोग एसएचएम. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसका फंक्शन. सो इसका सबसे पहले हम लोग रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे. You can say displacement. देखो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसे हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. डिस्प्लेसमेंट y is equal to a sin omega t प्लस 5. इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जहां पर a क्या है? एम्पलीट्यूड. a क्या है? एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन. ये देखो ये मीन पोजीशन है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट है. और ओमेगा, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी
angular frequency. Phi is the initial phase. Initial phase. Phase क्या होता है? Phase tells about position and velocity of the particle. Phase describes the position and velocity of the particle. जैसे अगर t equal to 0 से पार्टिकल यहां से चलेगा तो इसका फेज 0 होगा, और अगर इधर को चलेगा तो इसका फेज पाई होगा, इनिशियल फेज। ठीक है, ऐसे ही अगर यहां से चलेगा तो इसका फेज π/2 होगा, यहां से चलेगा तो -π/2 होगा, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम लोग फेज को डिफाइन करते हैं, इस तरह से फेज को डिफाइन करते हैं हम लोग। और फाई 0 का मतलब है कि पार्टिकल ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है t इक्वल टू 0 पर, ये मतलब है। ठीक है, इस चीज को हम लोग रेफरेंस सर्कल से भी देख सकते हैं। रेफरेंस सर्कल से भी हम लोग इस चीज को देख सकते हैं। ये देखो यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर एक पार्टिकल ले लेते हैं, इनिशियली वो यहाँ था t इक्वल टू 0 पर, और ये एंगल जो था ये फाई था, और थोड़ी देर बाद इसने एंगल ट्रैवल कर लिया ओमेगा टी। तो अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो देखो कितना हो जाएगा। इसकी जो रेडियस है उसे a मान लो, ये पूरा एंगल देखो कितना हो जाएगा, 5 प्लस ओमेगा टी, 5 प्लस ओमेगा टी, ये टोटल एंगल हो जाएगा 5 प्लस ओमेगा टी, इसे थीटा मान लो। सो थीटा इक्वल टू 5 प्लस ओमेगा टी। तो इसके हिसाब से देखो ये पूरा a है और ये थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये वाली जो हाइट है y कितनी आएगी? सो y विल बी इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट, यानी कि रेफरेंस सर्कल के अंदर किसी भी पार्टिकल का जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ऑन द y एक्सिस और x एक्सिस, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो SHM करता है। यानी कि जब पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूमता है तो ये पार्टिकल ऐसे SHM करता है, एक्सिस पर SHM करता है। ऐसे ही ये पॉइंट भी करता है, जैसे जैसे ये पार्टिकल घूमता है तो ये पॉइंट भी SHM करता है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि फाई इनिशियल फेज है। अगर फाई 0 है इसका मतलब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं इन चीजों को। ऐसे ही तुम इसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। अगर तुम डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाओगे तो देखो किस तरह से आएगा। डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। अगर फाई को 0 ले लेते हैं तो जैसे अभी पीछे हमने बनाया भी था टाइम के साथ, इस तरीके से इसका ग्राफ आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग थोड़ा फास्ट ट्रैक पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने तुम्हें बता दिया कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है। अगर हम x के साथ लेते हैं तो देखो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी a साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और अगर फाई को हम लोग 0 पुट कर लें तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी। ऑलराइट, तो सबसे पहले देखो वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी हो जाएगी हमारी dx by dt, this is the velocity and that is differentiation of this thing, that is a omega cos omega t। एंड इस वेलोसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू वो हो जाएगी a ओमेगा। और इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से टाइम के साथ कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ग्राफ, यहाँ से t इक्वल टू 0 पर cos 1 हो जाएगा तो v की वैल्यू a ओमेगा मैक्सिमम से स्टार्ट हो जाएगा ये ग्राफ। देखो इसका एक्सेलरेशन देखो, acceleration that is dv by dt differentiated once more, so that will be minus a omega square sin omega t, so that you can write a equal to minus omega square x like that। यही उस समय मैंने तुम्हें बताया था कि a proportional to minus x होता है, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाकर हम लोग ओमेगा स्क्वायर लगा देते हैं, वो यही चीज है। तो यहाँ से तुम देख सकते हो इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो एक्सेलरेशन का ग्राफ देखो डिस्टेंस के साथ कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा इसका ग्राफ। ठीक है, और इसका अगर हम लोग टाइम के साथ ग्राफ देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का उल्टा हो जाएगा। एक्सेलरेशन का देखो टाइम के साथ अगर हम लोग ग्राफ देखेंगे तो एक्सेलरेशन का टाइम के साथ तो डिस्प्लेसमेंट का उल्टा, ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, ऐसा हो जाएगा। ठीक है,
इसी तरह से हम लोग इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, ये देखो इसको हाफ mv स्क्वायर कर दो, हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। एंड वी कैन ऑल्सो राइट इट इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, ठीक है। क्योंकि कॉस ओमेगा टी को, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और वहां से x की वैल्यू a साइन ओमेगा टी को पुट कर देंगे। इसी तरह से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, सो दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सो ये पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से आती है, देखो, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन फोर्स dx, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन फोर्स dx, दैट इज फोर्स हो जाएगा मास टाइम एक्सीलरेशन इनटू dx। तो इससे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी m ओमेगा स्क्वायर, और ये आ जाएगा तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी। और अगर तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो देखो किस तरह से आएगा इसका ग्राफ। इसका ग्राफ देखो किस तरह से आएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी या डिस्टेंस है, तो ये जो ग्राफ है ये पोटेंशियल एनर्जी का है, और ये जो ग्राफ है ये काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। और इन दोनों का अगर सम कर दे तो ये मैकेनिकल एनर्जी हो जाती है। मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट रहती है, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। ऐसे ही तुम इसका ग्राफ टाइम के साथ भी बना सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ SHM। तो देखो किस तरह से बनेगा इसका ग्राफ टाइम के साथ। यहाँ पर हमने फाई को 0 ले रखा है, फाई को 0 ले रखा है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका ग्राफ देखो किस तरह से आएगा, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ लाइक दिस। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्टार्टिंग में मैक्सिमम होएगी, मेन पोजीशन पर मैक्सिमम होएगी। तो देखो उसका ग्राफ किस तरह से आएगा, इस तरीके से। और जो मैकेनिकल एनर्जी आएगी वो टोटल एनर्जी होएगी, तो इसका ग्राफ हो जाएगा ए मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी है, और जो रेड वाली है वो पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरीके से टाइम के साथ हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, टाइम के साथ इसका ग्राफ बना सकते हैं, टाइम के साथ हम लोग इसका ग्राफ बना सकते हैं, टाइम के साथ हम लोग इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। देखो सबसे पहले हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम देखेंगे। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, देखो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम क्या होते हैं। ये ब्लॉक है और ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, और इसे हमने एक्स डिस्प्लेसमेंट दे दिया, एक्स डिस्प्लेसमेंट दे दिया, तो इस पर जो फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा, फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स। फोर्स जो आएगा इस पर माइनस के एक्स आएगा, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, एंड फोर्स को हम लोग लिखेंगे मास टाइम एक्सेलरेशन, मास टाइम एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस के एक्स। तो यहां से आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम। इसका मतलब ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट के बाई एम, एंड टाइम पीरियड देखो क्या आएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। इस तरीके से हम लोग टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। एम ऊपर मास रहेगा और के स्प्रिंग कांस्टेंट रहेगा। ऐसे ही ध्यान रखना है तुम्हें कि अगर हमारे पास वर्टिकल स्प्रिंग है तो
अगर वेट mg लगेगा तो भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला सेम आएगा, 2 पाई अंडर रूट m by k सेम आएगा. एंड any external constant force cannot produce any effect on time period of spring block system. ये देखो, any constant force cannot produce any effect on time period of spring block system. स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, जो हमारा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, उसके टाइम पीरियड पर कोई भी इंपैक्ट नहीं डाल सकता. कांस्टेंट फोर्स कोई भी इंपैक्ट नहीं डाल सकता. जैसे कि मान लो स्प्रिंग पर वेट है, उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा. तुमने कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया, उसका भी कोई इंपैक्ट नहीं होगा. तुमने उसे लिफ्ट में रख दिया और लिफ्ट कांस्टेंट एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट कर रही है, उसका भी कोई इंपैक्ट नहीं होता. जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसे समझने के लिए. एक एग्जांपल ले लेते हैं. से समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. तो देखो, मान लो कि हमारे पास एक लिफ्ट है और यहाँ पर एक ब्लॉक को हैंग कर दिया गया, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है. लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है ए एक्सीलरेशन से, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है. तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? इसका टाइम पीरियड क्या आएगा? व्हाट विल बी द टाइम पीरियड? द आंसर इज t is equal to 2 pi under root m by k. आंसर इज t equal to 2 pi under root m by k. क्यों? क्योंकि इस पर जो फोर्स लगेगा, इसके ऊपर जाने से सूडो फोर्स m में लगेगा और वेट इसका mg, दोनों ही कांस्टेंट है. सो कांस्टेंट फोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम. तो इसके टाइम पीरियड पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा. तो इसका टाइम पीरियड एज इट इज रहेगा. लिफ्ट चाहे नीचे जा रही हो, चाहे ऊपर जा रही हो, किधर भी जा रही हो. हाँ, अगर लिफ्ट आगे जाएगी तो वहां दिक्कत हो सकती है, वहां दिक्कत हो सकती है. ठीक है, क्योंकि वहां पर ये कंफ्यूजन रहेगा कि हम इसको पेंडुलम की तरह ट्रीट कर रहे हैं या फिर स्प्रिंग के ऑसिलेशन की तरह ट्रीट कर रहे हैं. दोनों में थोड़ी उलझने रहेंगी, वो आगे सुलझाएंगे हम लोग, आगे समझेंगे उस चीज को हम लोग. अब स्प्रिंग के वेराइटी ऑफ द क्वेश्चन है जो मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, उन्हें ध्यान से समझो और सॉल्व करो. देखो, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और इसका K2 है, इसका मास m है. ठीक है. सो जब तुम इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे x, जब तुम इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे x, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? फाइंड टाइम पीरियड. ये सीरीज में आएगा या पैरेलल में आएगा? सीरीज में आएगा या पैरेलल में आएगा, ये देखना होगा हमें. ये सीरीज में आएगा या पैरेलल में आएगा. तो देखने में तो ऐसा लगता है कि ये सीरीज है, लेकिन एक्चुअली ये पैरेलल है. एक्चुअली ये पैरेलल है, क्योंकि चाहे तुम्हारे पास इस तरह का एक सिस्टम दे दिया जाए तुम्हें, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और K2 है, इसको डिस्प्लेस कर दिया जाए x, तो इस पर जो फोर्स होगा दैट विल बी माइनस K1 प्लस K2 इंटू x. तो इस तरीके से टाइम पीरियड इसका आएगा 2 पाई अंडर रूट m by k. सेम यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है. जब तुम इसको इधर डिस्प्लेस करोगे तो ये स्प्रिंग वापस से इसको प्रेस करेगी और ये स्प्रिंग इसको पुश करेगी, खींचेगी. ये पुल करेगी, ये पुश करेगी. तो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे. तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो हो जाएगा K1x प्लस K2x, जो कि बॉडी को वापस ला रहा है, तो रीस्टोरिंग होगा. ये रीस्टोरिंग होता है. तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं और यहाँ से तुम देख सकते हो कि यही सेम टाइम पीरियड आ जाएगा.
तो ये भी तुम्हारा जो क्वेश्चन है ये पैरेलल का है। ये पैरेलल और ये दोनों ही पैरेलल होते हैं। सीरीज में क्या फर्क रहता है, जैसे मान लो कि इस तरह से क्वेश्चन दे दिया गया तुम्हें, तो ये सीरीज हो जाता है और इस केस में टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√m/k, जहां पर k की वैल्यू होती है k1 k2 ओवर k1 प्लस k2। ये रहती है k की वैल्यू k1 k2 ओवर k1 प्लस k2। जैसे कैपेसिटेंस में होता है, कैपेसिटेंस के अंदर सीरीज, जो सीरीज है उसके अंदर इस तरह से जोड़ते हैं, और जो पैरेलल है उसके अंदर इस तरह से जोड़ते हैं C1 प्लस C2, यहाँ पर K1 प्लस K2, इस तरह से आ जाता है। ये स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है और इस पुली का मास कोई भी नहीं है, और यहाँ पर एक ब्लॉक को लटकाया गया है, इसके अंदर SHM करवा दिया जाता है। ये ब्लॉक SHM करता है, ये ब्लॉक SHM करता है। सो फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ब्लॉक। तो ब्लॉक का टाइम पीरियड निकालो। तो लेट्स चेक इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर एक चीज समझने की है कि अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं तो बाद में वो इक्विलिब्रियम कैंसिल हो जाता है और उसके फोर्सेस भी कैंसिल हो जाते हैं। अगर हम इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं तो वो उसके फोर्सेस भी कैंसिल हो जाते हैं, तो इसलिए हमें इक्विलिब्रियम कंसीडर करने की जरूरत नहीं होती है। इस बात को हम यहाँ से समझ सकते हैं कि जैसे मान लो ये बॉडी है हमारे पास, और पहले मान लो कि इसका इक्विलिब्रियम रीच कर जाता है, इसका इक्विलिब्रियम रीच कर जाता है, और ये हाइट y0 है और इसका इक्विलिब्रियम रीच कर जाता है। तो देखो इसका वेट नीचे एक्ट करेगा और ऊपर फोर्स लगेगा ky0। तो हम देख सकते हैं यहाँ से ky0 इज इक्वल टू mg, एक इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। इसके बाद ये नीचे इसको हमने और भी ज्यादा एक्सटेंड कर दिया, और भी ज्यादा एक्सटेंड कर दिया, तो ये y हो गया, तो ऊपर फोर्स हो जाएगा के y प्लस y0, के y प्लस y0, ये हो जाएगा mg, ये हो जाएगा mg। तो नेट फोर्स जो आएगा, इसको रिस्टोरिंग फोर्स, नेट फोर्स वो कितना हो जाएगा, देखो के वाई प्लस वाई नॉट माइनस एम जी। अब हम जानते हैं कि के वाई नॉट इज इक्वल टू एम जी, के वाई नॉट इज इक्वल टू एम जी, सो ये हो जाएगा के वाई प्लस के वाई नॉट माइनस एम जी। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो तुम देख सकते हो कि फोर्स क्या आएगा, के वाई, ये रिस्टोरिंग फोर्स है, ये रिस्टोरिंग फोर्स के वाई है। तो टाइम पीरियड क्या आएगा, यही आएगा जो आता है इन जनरल, ठीक है, टाइम पीरियड यही आएगा। इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम कंसीडर करने का कोई फायदा नहीं होता, बाद में वो फोर्सेस कैंसिल हो जाते हैं और टाइम पीरियड वही आती है। तो इसलिए हमने इसको इक्विलिब्रियम के फर्दर मान लिया और फर्दर इसे हमने डिस्प्लेस कर दिया y। जब इसको डिस्प्लेस करेंगे y, तो इसको y डिस्प्लेस करने के लिए जो पुली है वो कितना नीचे जाएगी, पुली जाएगी y/2। कितना नीचे जाएगी पुली, y/2, क्योंकि पुली के y/2 नीचे जाने से धागा y/2 इधर से फ्री होगा और इधर से भी y/2, तो टोटल y बन जाएगा और इसको प्रॉपर जितना डिस्प्लेसमेंट चाहिए उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं कि इस पार्टिकल के y नीचे जाने की वजह से जो पुली है वो y/2 नीचे जाएगी, और इस स्प्रिंग में जो इलांगेशन आएगा वो y/2 आएगा। तो अगर मैं इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम देखूं तो ऊपर फोर्स के y/2 होगा और नीचे टेंशन T और नीचे टेंशन T। यहाँ से हम देख सकते हैं 2T इज इक्वल टू के y/2, यानी कि टेंशन आ जाएगी के y/4, के y/4। अब देखो जरा, जब हम इसे नीचे डिस्प्लेस कर देंगे तो इसे वापस कौन ले जाएगा, वही टेंशन, वही टेंशन जो इसमें ये लग रही है नीचे, वही टेंशन इसमें ऊपर लगेगी, वही इसको वापस ले जाएगी। सो जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो यहाँ पर k/4 इंटू वाई है, k/4 इंटू वाई है। तो तुम देख सकते हो कि जो टाइम पीरियड आएगा, टाइम पीरियड 2π√m/k, m/k/4, k/4, तो ये 4 ऊपर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4π√m/k। आंसर आएगा 4π√m/k, ये आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर एनर्जी मेथड है,
एनर्जी मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजिली। जैसे मान लो कि यहाँ पर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, तो इसकी जो एनर्जी है देखो कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ये हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल प्लस हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक। तो इसे हम लिख सकते हैं, टाइम पीरियड यहाँ पे क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, तो इसे लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ वी स्क्वायर बाई 2 ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2। ऐसे एक ट्रिक बना सकते हैं, यहाँ पर एक ट्रिक बना सकते हैं और इसकी मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर इस ट्रिक को कैसे यूज करते हैं, इसी क्वेश्चन में लगा लेते हैं जो अभी अभी सॉल्व किया था हमने। जब इसे हम लोग डिस्प्लेस कर देंगे x, जब इसे हम लोग डिस्प्लेस कर देंगे x, तो फिर जो इसकी एनर्जी होगी वो देखो कितनी हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी, ये हो जाएगी हाफ के एक्स बाई 2 स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। So we can write it k by 4 into x square by 2 plus m into v square by 2। तो यहां से तुम देख सकते हो कि v square by 2 का कोफिशिएंट m हो जाएगा और x square by 2 का कोफिशिएंट k by 4 हो जाएगा। तो टाइम पीरियड आ जाएगा t is equal to 2 pi under root कोफिशिएंट ऑफ v square by 2 ओवर कोफिशिएंट ऑफ x square by 2, और ये 4 ऊपर आ जाएगा, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा, इस तरह से आंसर आ जाएगा। से मैं तुम्हें अगला क्वेश्चन देता हूँ और तुम्हारे पास दो मेथड है सॉल्व करने के लिए, दो मेथड है तुम्हारे पास, स्प्रिंग फोर्स मेथड भी है और एनर्जी मेथड भी है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, इसको मैंने इस तरह से डिस्प्लेस कर दिया, इसको मैंने इस तरह से डिस्प्लेस कर दिया। तो देखो यहाँ पर इन जनरल मेथड लगाना थोड़ा टफ हो जाएगा, और ये देखना कि इस स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन आया, इस स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन आया, थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग ट्रिक का यूज करते हैं, ट्रिक का यूज करते हैं, और यहाँ पर बहुत ही अच्छी ट्रिक हम लोग लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो फार्मूला होता है के इक्विवेलेंट का, वो होता है 1 ओवर सिग्मा एन स्क्वायर बाई के। इस तरह से हम लोग लगाते हैं, जहां पर एन जो होता है वो टेंशन कोफिशिएंट होता है, टेंशन कोफिशिएंट होता है, टेंशन कोफिशिएंट होता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर टेंशन टी है तो यहाँ पर भी टी हो जाएगी, और यहाँ पर टी है, यहाँ पर भी टी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 2t। तो इसका टेंशन कोफिशिएंट 2 हो जाएगा और इसका टेंशन कोफिशिएंट 1, इसका टेंशन कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। ठीक है, तो स्प्रिंग के लिए हम लोग इसको लिखते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे जरा ध्यान से देखना, इस ट्रिक को कैसे अप्लाई करेंगे जरा ध्यान से देखना। के इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 ओवर, इस स्प्रिंग का देखो टेंशन कोफिशिएंट क्या है 1, क्योंकि ये टी है तो टी को हम लिख सकते हैं 1 इंटू टी, तो 1 हो जाएगा। सो 1 स्क्वायर बाई के प्लस इसका टेंशन कोफिशिएंट 2 है, 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 के, तो ये हो जाएगा 1 बाई के प्लस 2 बाई के। तो देखो ये सॉल्व होकर के क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा के, ये हो जाएगा के बाई 3। तो इसका जो टाइम पीरियड निकालेंगे हम लोग, देखो कितना आएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई के मतलब k बाई 3, 3 यहाँ आ जाएगा, और इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। तो ये ट्रिक है, इस ट्रिक की मदद से तुम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इसे ध्यान से समझ लो। कॉन्स्टेंट 2k दिया हुआ है, ये वाला एक सेकेंड, ये k है और ये 2k, हाँ ये 2k है, ऊपर वाला 2k है और नीचे वाला k है।
तो इसकी मदद से तुम इस क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। एन क्या है सर? एन इज द टेंशन कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे टेंशन टी है तो इसको लिख सकते हैं 1T, यहाँ टेंशन 2T है तो इससे लिख सकते हैं 2T, तो ये जो 2 है यही एन है, वो टेंशन कोफिशिएंट है। एनर्जी ठीक है, मेथड से कैसे कर सकते हैं सर इसको? एनर्जी मेथड से थोड़ा लेंथी हो जाएगा। इसकी डिस्प्लेसमेंट x मान लो, इसकी डिस्प्लेसमेंट x1 मान लो, इसकी डिस्प्लेसमेंट x2 मान लो, इसकी x2 मान लो और इसकी x1 मान लो, इसकी x। तो जब ये x1 नीचे जाएगा तो यहाँ से 2x धागा फ्री होगा, और ये x2 ऊपर जाएगा तो x2 धागा फ्री होगा। तो टोटल धागा फ्री कितना हुआ? 2x1 प्लस x2। वो किसके बराबर हो जाएगा? x के। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से लगा देंगे, एक इक्वेशन तो यहाँ से लगा देंगे कि x विल बी इक्वल टू, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट हम लोग x1 मान लेते हैं और इसका डिस्प्लेसमेंट x2, तो ये हो जाएगा 2x1 प्लस x2। एक इक्वेशन तो यहाँ से आ जाएगी, और दूसरी इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी कि इसके अंदर जो फोर्स है वो देखो कितना है, इसके अंदर टेंशन T के बराबर हो जाएगा, यानी कि kx2। ठीक है, और यहाँ पर इसके अंदर जो फोर्स है वो हो जाएगी 2T, यानी कि यहाँ पर जो 2k x1 है वो किसके बराबर हो जाएगा? 2T के। तो 2T के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसके ऊपर जो फोर्स है वो 2T है, 2T है और उसका डिस्प्लेसमेंट x1 है, तो 2kx1 इक्वल टू 2T। तो यहाँ से हम देख सकते हैं x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। तो अगर हम x2 की वैल्यू पुट कर दे तो वहां से x1 इक्वल टू x/3 आ जाएगा, और जो टेंशन है वो kx2 के बराबर है। तो हम टेंशन को लिख सकते हैं, टेंशन को लिख सकते हैं x1 और x2 इक्वल है, x1 और x2 इक्वल है, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वही टेंशन होगी और वही kx1 होगी, और इन दोनों से मिला के हम x1 को सॉल्व कर सकते हैं, ये x/3 हो जाएगी। तो ये फोर्स मेथड से भी इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ऐसे ही जब हमें पता चल गया कि ये x/3 है और ये भी x/3 है, तो फिर हम लोग इसको एनर्जी मेथड से भी कर सकते हैं। ओके, गॉट इट? यस सर। ऑलराइट, दूसरा क्वेश्चन देता हूं, उसको एनर्जी मेथड से करो। क्वेश्चन में दे रहा हूं, इसको एनर्जी मेथड से करो। ये डिस्क है और इसको स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, और फ्रिक्शन सफिशिएंट है, फ्रिक्शन सफिशिएंट है। ठीक है, सो फाइंड इट्स टाइम पीरियड, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड निकालना है। इसको इस तरीके से ऑसिलेट करवा दिया जाता है, इस तरीके से ऑसिलेट करवा दिया जाता है। स्प्रिंग का SHM टाइम, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, रेडियस R है और इसका मास M है। इसको ऑसिलेट करवा दिया जाता है इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके से ये SHM करने लगती है। सो फाइंड आउट द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड निकालो इसका। देयर इज नो स्लिपिंग, देयर इज नो स्लिपिंग बिकॉज फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, नो स्लिपिंग एट ऑल। वॉल्यूम तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
इसकी मैकेनिकल एनर्जी लिखेंगे, मैकेनिकल एनर्जी लिखेंगे इसकी हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, डिस्क है ये हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस इसके x जाने से स्प्रिंग भी x खींचेगा, सो हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये डिस्क है तो ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा वी बाई आर स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखो ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर कट देंगे तो ये आ जाएगा 1/2 वी स्क्वायर इंटू 3/2 m प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू के, ये आ गया। तो तुम देख सकते हो यहाँ से वी स्क्वायर बाई 2 का कोफिशिएंट हो गया 3m/2 और एक्स स्क्वायर बाई 2 का कोफिशिएंट हो गया k। So time period can easily be calculated. How? Time period will be t is equal to 2 pi under root coefficient of v square by 2, that is 3m/2, and that is, ये आ जाएगा आंसर। This is the answer. This is the answer. So 2 pi under root 3m/2k, 2 pi under root 3m/2k, तो ये 3 है ये 2 पाई अंडर रूट 3m/2k। इस तरीके से तुम इसका आंसर निकाल सकते हो। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुम्हें याद रखनी होंगी, जैसे कि अगर हमारे पास इस तरह से दो ब्लॉक्स हैं m1 m2 और इनका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और दोनों एक साथ ऑसिलेट करते हैं, तो इसके ऑसिलेशन के लिए हम लोग रिड्यूस्ड मास मेथड का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और रिड्यूस्ड मास में एक ब्लॉक को रेस्ट पर ले लिया जाता है और दूसरे ब्लॉक का मास म्यू मान लिया जाता है। एक ब्लॉक को रेस्ट पर ले लिया जाता है और दूसरे ब्लॉक का मास म्यू मान लिया जाता है। एक ब्लॉक को रेस्ट पर ले लिया जाता है और दूसरे ब्लॉक का मास म्यू मान लिया जाता है। तो देखो यहाँ पर इसका टाइम पीरियड हो जाता है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट म्यू बाई के, जहाँ पर म्यू की वैल्यू क्या होती है m1 m2 ओवर m1 प्लस m2। इसको रिड्यूस्ड मास बोलते हैं, इसको रिड्यूस्ड मास कहते हैं। तो डायरेक्ट इस तरीके से इसका टाइम पीरियड निकाला जाता है, और इसमें जो टाइम पीरियड m1 का होगा वही स्प्रिंग का होगा, वही m2 का, तीनों का टाइम पीरियड सेम रहता है, चाहे स्प्रिंग का पूछा जाए, चाहे m1 का, चाहे m2 का या सिस्टम का, एक ही बात है, तीनों का टाइम पीरियड सेम रहता है। और ये जो m1 m2 हैं, जब ये ऑसिलेट करते हैं तो ये इधर आता है तो ये इधर आता है, फिर वो उधर जाता है तो ये उधर जाता है, यानी कि ऑपोजिट फेज में रहते हैं। m1 m2 ऑपोजिट फेज में रहते हैं, क्योंकि दोनों जब मैक्सिमम डिस्टेंस से वापस आते हैं तो उल्टे डायरेक्शन में आते हैं, और फिर जब जाते हैं तो भी उल्टे डायरेक्शन में जाते हैं। तो दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो पाई होता है, फेज डिफरेंस पाई होता है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास इस तरह का स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और इस स्प्रिंग का मास स्मॉल m है, स्प्रिंग का मास। तो अभी इसका जो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट m प्लस m/3 डिवाइडेड बाई k, यानी स्प्रिंग का जो फैक्टर यहाँ यूज होता है मास का, वो m/3 यूज होता है। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस इन जनरल आते नहीं है, बट मैंने तुम्हें बता दिया समटाइम्स आ भी सकते हैं, क्योंकि जो स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी होती है स्प्रिंग की, वो काइनेटिक एनर्जी 1/6 mv² होती है। अगर इस एंड की वेलोसिटी v है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 1/6 mv² होती है। तो इसे हम लिख सकते हैं हाफ इंटू m/3 इंटू v²। तो यहाँ पर जो इफेक्टिव मास आता है वो कितना आता है, इफेक्टिव मास जो आता है वो कितना आता है m/3।
इसलिए एसएचएम का टाइम पीरियड इस तरीके से तुम निकाल सकते हो। ये वो केस है जिसके अंदर स्प्रिंग का मास दिया हो। अगर स्प्रिंग का मास दिया हो तो हम लोग किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज है। तो ये काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग के आरएमएस से निकाली हुई है सर, उसकी लेंथ के अक्रॉस सारे पार्टिकल्स का आरएमएस लेके। यस यस, वैसे कह लो या फिर यूनिटरी रूल लेकर के एक जनरल पॉइंट की वेलोसिटी लेके इंटीग्रेशन कर लो। यस सर। ऑलराइट, तो देखो यहाँ कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं स्प्रिंग को कट करने वाले। जैसे मान लो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है और इसे कट कर दिया गया, इसे कट कर दिया गया, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2k हो जाएगा और इसका 2k, बिकॉज k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर 3 भागों में कट करोगे तो 3k हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओरिजिनली k था तो ये हो जाएगा 3k, 3k एंड 3k। फिर हमने इसको क्या किया, इस तरीके से जोड़ दिया, इस तरीके से जोड़ दिया और इस तरीके से ब्लॉक को हैंग कर दिया। तो ये 3k है, ये 3k है, ये भी 3k है और ये ब्लॉक है। तो अब देखो इसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। इसका टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√m/k। देखो ये दोनों पैरेलल में है तो 3k 3k 6k हो जाएंगे। 6k और 3k सीरीज में है, 6k और 3k सीरीज में है, तो इनका जो कॉम्बिनेशन आएगा ये 2k हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2k, क्योंकि 1/k' इज इक्वल टू 1/3k प्लस 1/6k। तो इसकी मदद से ये 2k हो जाएगा और इस तरह से तुम टाइम पीरियड निकाल सकते हो, इस तरह से टाइम पीरियड निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है और इसके अंदर एक पुली को जिसका मास m है, इसको इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट दे दिया जाता है। ठीक है, देयर इज नो स्लिपिंग, नो स्लिपिंग, यानी कि थ्रेड और पुली के बीच में कोई भी स्लिपिंग नहीं है, कोई भी स्लिपिंग नहीं है, यानी कि फ्रिक्शन में कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसे एसएचएम करवा दिया जाता है। तो इसका टाइम पीरियड निकालना है। ब्लॉक का टाइम पीरियड निकालना। तो देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। इसकी एनर्जी लिखेंगे, एनर्जी देखो, इसको x डिस्प्लेस करोगे तो इधर से भी धागा x चाहिए और इधर से भी x चाहिए, यानी कि इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो इसकी जो एनर्जी आएगी दैट विल बी हाफ k 2x स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर
प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर बाय 2 ब्रैकेट में 4k प्लस यहाँ पर ओमेगा को v बाई आर लिख देंगे, ओमेगा को v बाई आर लिख देंगे। ठीक है, और v स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा i बाई आर स्क्वायर प्लस m, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड आएगा, देखो कितना आएगा। टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट मास, दैट इज v स्क्वायर बाय 2 का कोफिशिएंट, m प्लस i बाई आर स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर बाय 2 का कोफिशिएंट, यानी कि 4k। ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। ये स्प्रिंग है, यहाँ पर इनके कांस्टेंट्स गिवन है, के 2k 3k k, तरीके से इनके कांस्टेंट्स गिवन है। ठीक है, और ये ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m है, इसको ऑसिलेट करवा दिया जाता है। सो फाइंड आउट द टाइम पीरियड, फाइंड टाइम पीरियड। ये सारे पुलिस मासलेस हैं, सारी पुलिस मासलेस हैं, फ्रिक्शनलेस हैं, मासलेस हैं, कहीं कोई एनर्जी लॉस नहीं है। टाइम पीरियड निकालना है एम ब्लॉक। तो देखो, इससे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट के निकाल लेंगे इसका। सो के इफेक्टिव दैट विल बी 1 ओवर सिग्मा n स्क्वायर बाय k। तो यहाँ पर टेंशन T होगा, तो यहाँ 2T हो जाएगा, यहाँ पे भी 2T हो जाएगा, यहाँ पे भी 2T हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2T। तो इसका टेंशन कोफिशिएंट 2 रहेगा, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2। तो ये हो जाएगा 4 बाई k, ये हो जाएगा 4 बाई 3k, ये हो जाएगा 4 बाई 2k, और ये हो जाएगा 4 बाई k। इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके देखो ये कितने के आएंगे, इसके सॉल्व करके आ जाएंगे एलसीएम ले लो, 6k हो जाएगा एलसीएम। तो ये आ जाएगा 6k डिवाइडेड बाई ये 24 हो गया, ये 8 हो गया, और ये 12 हो गया, और ये 24। तो ये हो जाएगा 48 प्लस 12 68। सो के इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से देखो तुम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड आ जाएगा T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट
m by k, k की वैल्यू हो जाएगी 6k/68, 6k/68, तो ये हो जाएगा 3k/34, 3k/34, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2π√34m/3k, ये आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा आंसर, इस तरह से आ जाएगा आंसर। तो एनर्जी मेथड से अलग आ रहा है सर। Don't apply energy method here because it will be little lengthy. इसको x डिस्प्लेस कराएंगे तो इसके डिस्प्लेसमेंट को x1 मान लो, तो ये 2x1 मिलेगा, ये 2x2 मिलेगा, ये 2x3 मिलेगा, ये 2x4 मिलेगा। सो 2x1 + 2x2 + 2x3 2x4 = x होएगा। ओके सर। हाँ, तो काफी लेंथी हो जाएगा। सिंपल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट देखो क्या होता है। ये बॉब है जो कि काफी हैवी है और रेडियस इसकी काफी स्मॉल है। तो यहाँ पर जो बॉडी का वेट होता है, बॉब का जो वेट है वो इस तरीके से एक्ट करता है, एंड दिस एंगल इज थीटा। सो this is mg cos theta and this is mg sin theta. So mg sin theta basically applies a torque about this point O, and it tries to move the bob towards its mean position. So this is called as angular SHM. क्या कहते हैं इसको? Angular SHM. And the displacement is represented by theta equal to theta naught sin omega t plus phi. इस तरह से हम लोग इसको represent करते हैं, ठीक है? And the velocity at the lowermost point, velocity at the lowermost point, देखो क्या आ जाएगी velocity. So velocity at the lowermost point, that is maximum velocity. Maximum velocity. Maximum velocity will be equal to length of the thread is L, L into omega maximum, angular velocity maximum. थीटा ये है तो एंगुलर वेलोसिटी देखो मैक्सिमम कितनी आएगी। सो d थीटा बाई dt, d थीटा बाई dt इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू, इसको ओमेगा डैश कह सकते हैं हम लोग, और ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला है, तो ये हो जाएगा थीटा नॉट इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। सो ओमेगा डैश की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी देखो कितनी हो जाएगी, थीटा नॉट इंटू ओमेगा, दैट इज थीटा नॉट इंटू 2πf, वेयर f इज फ्रीक्वेंसी, f is frequency, ठीक है? थीटा नॉट इज द एम्पलीट्यूड, थीटा नॉट इज द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, थीटा नॉट इज द एम्पलीट्यूड, ठीक है? सो मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी थीटा नॉट इंटू L इंटू 2πf, दिस इज द maximum velocity at the lowest point, at the lowest point. And the time period can be calculated as, what is the torque about O point? Torque about O point is I alpha. I alpha is basically what? mg sin theta into L, perpendicular distance, mg sin theta into perpendicular distance. Okay, sin theta को theta मान लेंगे, sin theta को हम लोग theta मान लेंगे, taking theta small, taking theta small, otherwise ये SHM नहीं होगा. So time period will be equal to 2π under root theta by alpha. So that is 2π under root I over mgl, I over mgl, I over mgl. इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I होगा that will be ml square, ml square. So इसको वहां पुट कर देंगे, तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड आएगा इसका, ये आ जाएगा t is equal to 2π under root L by g. ये आ जाएगा 2π under root L by g, 2π under root L by g. You need to remember this time period, you need to remember this time period, 2π under root L by g. इस तरह से सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, और इसी के बेसिस पर हम लोग फिजिकल पेंडुलम को भी डील कर सकते हैं, इसी बेसिस पर हम लोग फिजिकल पेंडुलम भी डील कर सकते हैं,
फिजिकल पेंडुलम क्या होता है? फिजिकल पेंडुलम वो पेंडुलम है जिसके अंदर बॉब एक पार्टिकल है, और बॉब को अगर हम रिप्लेस कर दे किसी बड़े ऑब्जेक्ट से, किसी बड़ी बॉडी से अगर हम उसे रिप्लेस कर दे, तो उसे हम लोग फिजिकल पेंडुलम कहते हैं। जैसे मान लो कि एक स्फीयर है, उसको एक थ्रेड से कनेक्ट करके हमने ऑसिलेट करवा दिया, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा फिर फिजिकल पेंडुलम। हमारे पास एक रिंग है, उसे धागे से कनेक्ट करके उसे ऑसिलेट करवा दिया, तो वो भी फिजिकल पेंडुलम हो जाएगा। हमारे पास स्फीयर है और कोई और चीज है, तो उसको डिस्क है, रॉड है, ये सब फिजिकल पेंडुलम हो जाते हैं। तो देखो फिजिकल पेंडुलम को हम लोग किस तरह से डील करते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई भी बॉडी है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है जहां से हमने इसको हैंग कर रखा है, और इस तरीके से इसको पेंडुलम बना दिया हमने, इस तरीके से इसको पेंडुलम बना दिया हमने। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, mg cos थीटा इस तरफ आएगा और mg sin थीटा इस तरफ आएगा, और ओ पॉइंट के बाद टॉर्क हम लोग निकालेंगे तो वही आएगा mg sin थीटा इंटू ये डिस्टेंस, ये d मान लो, इसको d मान लो। तो और इसे हम लोग आई अल्फा पुट कर देंगे, तो यहाँ से टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई ओवर एम जी डी, आई ओवर एम जी डी, ये है टाइम पीरियड, ये है टाइम पीरियड। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट, I is the moment of inertia about point O. I is the moment of inertia about point O. So I is about O. इस पर एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम लोग। जैसे देखो यहाँ पर ये रॉड है और इसको ऑसिलेट करवा दिया गया, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, इसको ऑसिलेट करवा दिया गया, रॉड की लेंथ L है, मास M है, इसको ऑसिलेट करवा दिया। इसका टाइम पीरियड निकालो, टाइम पीरियड निकालो इसका, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, सॉल्व करो। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई, आई इस पॉइंट के अबाउट लेंगे, इस पॉइंट के अबाउट ml स्क्वायर बाई 3 ओवर mgd, mgd, d मतलब पोजीशन डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास जो कि l बाई 2, l बाई 2, l बाई 2। तो इसे सॉल्व कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट, 2 पाई अंडर रूट 2l बाई 3g, 2l बाई 3g, ये आंसर हो जाएगा, 2l बाई 3g, ये आंसर हो जाएगा। पेंडुलम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुम्हें ध्यान रखने चाहिए। द फर्स्ट इज, अगर इसे लिफ्ट में ले जाया जाए तो क्या होगा? अगर लिफ्ट में ले जाएंगे तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी प्लस ए, लिफ्ट को ऊपर ले जाएंगे तो एल ओवर जी प्लस ए, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसे इस डायरेक्शन में ले जाएंगे, देखो जब ऊपर ले जाएंगे तो एम जी भी नीचे लगेगा और सूडो फोर्स एम ए भी नीचे, और जब आगे ले जाएंगे तो देखो सूडो फोर्स एम ए इधर हो जाएगा और एम जी इधर हो जाएगा। तो इसका जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जी इफेक्टिव मान सकते हैं हम लोग, दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। इस केस में इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल ओवर अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस तरीके से थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए जाते हैं। अगर धागे की लेंथ बहुत ही लार्ज कर दी जाए, इफ एल टेंड्स टू इंफिनिटी, धागे की लेंथ को लार्ज कर दिया जाए तो टाइम पीरियड हो जाता है 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी, आर बाई जी, वेर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ।
वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो इस तरह से अगर लेंथ पेंडुलम की बहुत ही लार्ज कर दी जाए तो उसका टाइम पीरियड इस तरह से लिख दिया जाता है। एंड if a body is hanging with multiple thread, अगर धागा मल्टीपल है यहाँ पर, तो इस केस में इसके ऑसिलेशन को हम लोग रोटेशनल एसएचएम नहीं मानते बल्कि ट्रांसलेशनल एसएचएम मानते हैं। ठीक है, इसे हम लोग ट्रांसलेशनल एसएचएम मानते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां से अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर रोटेशनल इफेक्ट नजर नहीं आते हैं। स्मॉल थीटा के लिए रोटेशनल इफेक्ट नजर नहीं आते हैं, ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन में ही मोशन करता हुआ नजर आता है। तो इसका टाइम पीरियड जो है वो 2π√L/g होता है। यानी कि अगर एक धागे से है तो बेशक मतलब दो धागे से है तो बेशक ये फिजिकल बॉडी है, बड़ी बॉडी है, लेकिन इसको फिजिकल पेंडुलम नहीं मानेंगे। इट इज नॉट अ फिजिकल पेंडुलम, इसको सिंपल पेंडुलम मान करके ही सॉल्व करते हैं। ये देखो, जैसे मान लो कि ये बॉल है और इसे पानी में लिक्विड में डाल दिया तुमने, लिक्विड में डाल दिया और इसकी डेंसिटी सिग्मा है और लिक्विड की रो है, इसकी डेंसिटी सिग्मा है और लिक्विड की रो है। तो इस केस में इसका जो टाइम पीरियड आएगा, सो दैट विल बी t = 2π√L/g 1 माइनस रो बाय सिग्मा, 1 माइनस रो बाय सिग्मा। इस तरीके से आएगा ये 1 माइनस रो बाय सिग्मा, क्योंकि इसका इफेक्टिव वेट लेना पड़ेगा तुम्हें। इसका वेट नीचे एक्ट करेगा, अब थ्रस्ट फोर्स ऊपर एक्ट करेगा, टेंशन भी ऊपर एक्ट करेगा। सो यहाँ से सॉल्व करेंगे t + v/ρg = mg। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो जो टेंशन आएगा इफेक्टिव वो इस ढंग से आ जाएगा कि g डैश की वैल्यू आएगी g × 1 माइनस रो बाय सिग्मा, 1 माइनस रो बाय सिग्मा। इस तरह से आएगा ये। इस कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम का देखो मतलब क्या होता है। मतलब ये है कि जैसे एक पार्टिकल है और वो x डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो x1 है, और अगर इसे एक दूसरा इसी पार्टिकल को दोबारा से एसएचएम कराया जाता है और इसका डिस्प्लेसमेंट x2 है, अगर इन दोनों एसएचएम को सुपर इम्पोज कर दिया जाए एक ही पार्टिकल पर, सो नेट जो एसएचएम होगा वो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा वो देखना होता है हमें। ठीक है, तो जब हम दो एसएचएम को कंबाइन करते हैं तो x विल बी इक्वल टू x1 + x2। ये तब है जब वन डायमेंशन में रहेगा, ये एक ही डायमेंशन में रहेगा, एक ही डायमेंशन। ठीक है, और इस केस में अगर इसका एम्पलीट्यूड a1 है और इसका a2 है तो रिजल्टेंट हो जाएगा x = सम कांस्टेंट a sin ω_t + सम कांस्टेंट डेल्टा, जहां पर x1 क्या है, x1 इज सम एसएचएम a1 sin ω_t और x2 दैट इज a2 sin ω_t + phi। इस तरीके से इनके बीच का फेज डिफरेंस phi है और दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों x एक्सिस में एसएचएम करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा एसएचएम वो इस तरह से आएगा, जहां पर a की वैल्यू होगी √a1² + a2² + 2a1a2 cos phi, और जो एसएचएम की एनर्जी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर तरीके से रहती है। और अगर दोनों के एसएचएम अलग अलग डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगा, देखो डेल्टा ये मान लो क्या चीज, डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू तुम निकाल सकते हो यहाँ से ऐसे। एम्पलीट्यूड a1 ले लो, इसको a2 ले लो, ये a हो गया तुम्हारा, ये एंगल फाई होता है, ये डेल्टा होता है। अभी डेल्टा निकल जाएगा यहाँ से, tan डेल्टा = a2 sin phi over a1 + a2 cos phi। ऑलराइट, यस सर। सो दूसरा केस ले लो, जब एक एसएचएम तो a sin ω_t में हो रहा है और दूसरा एसएचएम y = b cos ω_t
प्लस फाई, इस तरह से हो रहा है। तो देखो यहाँ पर दो डायरेक्शन में एसएचएम हो रहा है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो पता नहीं क्या होगा, बहुत ही अजीब हो सकता है। और कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम पे तो सच मायने में मतलब 2 घंटे भी क्लास चलनी चाहिए, तब भी ये आर्टिकल खत्म नहीं होगा। हालांकि जो मेन हमारी रिक्वायरमेंट है समझने की, वो हम इसे कर लेते हैं, यहाँ से वैल्यू को फिक्स कर लेते हैं। जैसे कि फाई को 0 ले लो, फाई को 0 ले लो, तो देखो ये कॉम्बिनेशन क्या बनाएगा, ये कॉम्बिनेशन बनाएगा x बाई ए स्क्वायर प्लस y बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसा बन जाएगा कॉम्बिनेशन। यानी कि ये एलिप्स हो जाएगा, ये एलिप्स हो जाएगा, इनका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, एलिप्स। और अगर हम ऐसा करें कि फाई इक्वल टू 0 ले लें और a इक्वल टू बी ले लें, तो फिर देखो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल बन जाएगा। सो इस तरह से कॉम्बिनेशन जो है वो सर्कल भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो अभी हम इतना ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम खुद एक बहुत बड़ा आर्टिकल है, जिस पर 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने तुम्हें शॉर्ट में समझा दिया कि कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम दो तरह के हो सकते हैं, वन इन द सेम डायरेक्शन, अनदर इन द डिफरेंट डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में होते हैं तो कॉम्बिनेशन एसएचएम ही होगा, दैट इज ट्रू। बट अगर वो अलग अलग डायरेक्शन में होंगे तो उनका रिजल्टेंट एसएचएम होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ तुम देख सकते हो अलग अलग डायरेक्शन की वजह से यहाँ पर सर्कल बन गया, सर्कल एसएचएम नहीं होता। सर्कल पीरियोडिक मोशन हो सकता है लेकिन एसएचएम नहीं होता, एसएचएम नहीं होता। देखो दिस इज अनडैम्प्ड। ये जो तुम देख सकते हो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। So this is damped. Maximum amplitude can be treated as A naught. This is also A naught. So at any time, तो मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां देखो, जैसे जैसे टाइम पास होता है तो इसका जो इनिशियल एम्पलीट्यूड है, इस बॉडी का जो इनिशियल एम्पलीट्यूड है ए नॉट, वहां से हमने इसको रिलीज कर दिया है, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, फिर नेगेटिव में बॉडी ऑसिलेट करती रहेगी, और एम्पलीट्यूड की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो चेंज नहीं होती, उसे हम लोग कहते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। लेकिन जब डैम्पिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जब विस्कोसिटी पिक्चर में आ जाती है, जब लिक्विड पिक्चर में आता है, तो फिर तुम देख सकते हो किस तरह से एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता जा रहा है, एम्पलीट्यूड घटता जा रहा है। तो ये डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड का ग्राफ है।
इस तरह से घटता जा रहा है एम्पलीट्यूड, और एनर्जी भी घटती चली जाती है, और धीरे धीरे इसके ऑसिलेशन डाई कर जाते हैं, इसके ऑसिलेशन खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं पूरी तरह से, कंप्लीटली इनकी जो एनर्जी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और धीरे धीरे करके ये डैम्प हो जाते हैं। और यहाँ पर लिक्विड की वजह से एक फोर्स लगता है जिसे हम लोग डैम्पिंग फोर्स कहते हैं। यहाँ पर जो B है ये डैम्पिंग कांस्टेंट है। B is called as damping constant that depends on the viscosity and mass of the body. Viscosity and mass of the object, shape of the object and viscosity of the liquid, उस पर डिपेंड करता है ये B, जो डैम्पिंग फैक्टर है, डैम्पिंग कांस्टेंट है। और डैम्पिंग कांस्टेंट की वजह से देखो टोटल एनर्जी किस तरह से रिप्रेजेंट की गई है, और जो एम्पलीट्यूड है टाइम के साथ वो किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, इस ढंग से किया जाता है। यहीं पर अगर हम लोग इसमें एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा दें, इसके अंदर अगर हम लोग एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा दें, अगर एक एक्स्ट्रा फोर्स इसके अंदर पीरियोडिक फोर्स लगा दे, तो अगर एक्स्ट्रा पीरियोडिक फोर्स लगा दे इसके अंदर हम लोग, यहाँ पर अगर हम लोग एक एक्स्ट्रा पीरियोडिक फोर्स लगा दे F0 cos ओमेगा डैश t, तो तुम देखोगे, और मान लो कि इसका अनडैम्प्ड जो टाइम फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा नॉट है। ओमेगा नॉट को हम लिख सकते हैं √k/m, ठीक है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये ओमेगा 1 हो जाती है, ठीक है, जो कि इसके बराबर नहीं होती। ये ओमेगा 1 हो जाती है जो कि इसके बराबर नहीं होती। ये हो जाती है ओमेगा स्क्वायर माइनस B स्क्वायर ओवर 4m। तो ये होती है √B स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस B स्क्वायर ओवर 4m। ये हो जाती है ओमेगा 1। ओमेगा 1 जो हो जाती है वो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 4m हो जाती है इसके केस में। लेकिन अगर इसके केस में हम यहाँ पर एक F0 cos ओमेगा डैश t, एक ऑसिलेटरी फोर्स इसके ऊपर लगा दें, ठीक है, तो फिर धीरे धीरे इसका जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे किसी पर्टिकुलर ओमेगा पर मैक्सिमम हो जाता है, इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। ओमेगा डैश इज इक्वल टू ओमेगा पर, ओमेगा नॉट पर ये मैक्सिमम हो जाता है एम्पलीट्यूड, एंड दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। यहीं पर एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाती है और यहीं पर एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम हो जाता है। तो रेजोनेंस को मैंने शॉर्ट में, यस, जो आपने ओमेगा 1 वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है सर, उसमें B स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर नहीं आना चाहिए सर? यस 4m स्क्वायर होगा, अदरवाइज डायमेंशनली भी करेक्ट नहीं होएगा। सो रेजोनेंस को हमने शॉर्ट में समझा दिया है तुम्हें, ठीक है, रेजोनेंस को मैंने शॉर्ट में समझा दिया है तुम्हें। बाकी इन सारी चीजों को अच्छी तरह से किया जा सकता है, समझा जा सकता है, इन पे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, और कोई चीज होती है तो उस पर हम लोग बाद में डिस्कस भी कर सकते हैं। सो ऑलराइट,